নমস্কার, আপনারা দেখছেন আফতাব খবর। আমি বিনয় ভরদ্বাজ আর আমার সঙ্গে আজকে গেস্ট হিসাবে রয়েছেন তমল সাহা, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তমল দা, আপনাকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত। দর্শক বন্ধু, 11টা বাজে, 11টা বেজে গেছে অলরেডি। আমরা আপনাদের জন্য একটি নতুন অনুষ্ঠান শুরু করছি। সেই অনুষ্ঠান নাম আপনারা জানেন, আফতাব সকাল সকাল। আফতাব সকাল সকালে সকল যারা যোগদান করছেন দর্শক বন্ধুরা, প্রত্যেককে জানাই স্বাগত। দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে জানাই, আপনারা আফতাব সকাল সকাল অনুষ্ঠানে সরাসরি যোগদান করুন। আপনাদের স্ক্রিনে আমরা একটা নাম্বার দিয়েছি, সেই নাম্বারে ফোন করে আপনি সরাসরি অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেন। এর পাশাপাশি একটা লিঙ্ক আমরা দিচ্ছি, এই লিঙ্কের মাধ্যমেও কিন্তু আপনি সরাসরি ভিডিও বার্তা দিয়ে আপনি যোগদান করতে পারবেন। আমাদের যেভাবে কথা বলছি আমরা, দেখতে পাচ্ছেন, সেই একইভাবে আপনারাও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে কথা বলতে পারবেন। অনুষ্ঠানটার নাম আফতাব সকাল সকাল। এবার বলছি জনতা, জনতার কথাই এখানে বলা হয়েছে। জনতা এবার বলবে। জনতা হিসাবে আপনি যা আপনার মনের ইচ্ছা, সেই সমস্ত কথা, যে কথাগুলো আপনারা বলার মঞ্চ নেই, সেই জনতাকে, সেই আপনাদেরকে প্রত্যেককে আফতাব খবর এই মঞ্চ করে নিয়েছে। আপনারা সরাসরি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে আপনাদের কথা বলতে পারবেন। আমরা এই আফতাব সকাল সকাল শুরু করছি। আজকে একটা বিশেষ সাবজেক্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো, আলোচনা করব। সেটা আসলো, সাবজেক্টটা হচ্ছে জুট মিল। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের জুট নিয়ে একটা বিস্তীর্ণ ব্যাপক বড় মার্কেট রয়েছে। প্রচুর জুট মিল আছে, জুট শ্রমিক আছেন, কিন্তু জুট শ্রমিকদের অবস্থা, জুট মালিকদের অবস্থা এবং জুটের ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা কেমন রয়েছে সে সমস্ত কথা বলবো। আর এই সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের এক্সপার্ট যারা রয়েছে, জুট মিলের শ্রমিক ইউনিয়ন নেতারা রয়েছেন, তারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন। তার আগে আমরা অনুষ্ঠানটা যেহেতু শুরু করছি, সেইখানে আমরা সরাসরি আপনাদের কাছে চলে যাই। আজকে জানেন আপনারা 20 তারিখ, তাই তো? 20শে জানুয়ারি, আমরা 20শে জানুয়ারিতে আছি। 20শে জানুয়ারি আজকে অনুষ্ঠান আমরা শুরু করার আগে বিভিন্ন খবরের কাগজে হেডলাইনগুলো আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরি। যেমন আনন্দবাজার বলছে, একটা মারাত্মক একটা ব্যানার নিউজ করেছে, হেডিং করেছে, নিজেরাই দায়িত্ব নিল শীর্ষ কোর্ট। অর্থাৎ কিসের জন্য? কোভিড ক্ষতিপূরণে ঢিলামি নয়, কোভিডের জন্য দেশে যারা মারা গেছে সমাজ, তাদের পয়সা আবন্টন করা, তাদের একটা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সরকার ঘোষণা করেছে। এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেক ঢিলে ঢালা ভাব রয়েছে। কেউ পাচ্ছেন, কেউ পাচ্ছেন না। এই জায়গাগুলো অনেকটাই একটা মানে মানে টাল বাহানার একটা অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সরকারও ভাবছে যে এটা মনে হয় তেমন ভাবে প্রয়োজন নেই, সেই খুব ঢিলে ঢালা ভাব রয়েছে। এই ঢিলে ঢালা ভাব থেকে আজকে কিন্তু একটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সুপ্রিম কোর্ট নিজেই এই দায়িত্বটা নিয়ে নিল, তারা নজরদারি চালাবে। সেটাকে কিভাবে দেখছে আপনি? পরিষ্কার সুপ্রিম কোর্টে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই হলফনামা দাখিল করেছিল যে 50,000 টাকা করে দেবে। শুভ উদ্যোগ, কিন্তু এই যে আমি তো বারবার এই কথা বলি, এই যে রাষ্ট্রীয় যে ব্যবস্থা, তাতে এই সরকারের সদিচ্ছা আছে কিনা এইটাই তো বুঝতে হবে। না হলে সুপ্রিম কোর্ট কেন এই টাকা ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে না, কেন যথাসময়ে পাচ্ছেন না এই মৃতের পরিবার বা এই আক্রান্তের পরিবার, তো পাচ্ছে না কেন? তার বাহানা করছে বলে। তার মানে কি? রাষ্ট্র তার এই সামনে প্রজাতন্ত্র দিবস, প্রজাদের দিকেই তাকাচ্ছে না, তার বাহানা করছে অর্থনৈতিকভাবে তাদের পিছিয়ে রাখার জন্য বা তাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য। খালি লোক দেখানো এই যে 50,000 টাকা, সুপ্রিম কোর্ট নিজেই জন্য দায়িত্ব নিয়েছে এবং রাজ্যগুলো তো তার দেখভাল করবে। কিভাবে দেখভাল করবে সে পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে। আমি তো বলবো যে আমাদের এই যে ন্যায়ালয়, এটা একটা শুভ উদ্যোগ, একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লিখে নিয়েছে। এটাকে তো আমাকে নিশ্চিতভাবে সমর্থন করতে হবে। এইভাবে যে সুপ্রিম কোর্ট নিজে দায়িত্ব নিয়ে নিল, এই যে একটা রাষ্ট্রের ওভারঅল দিক করলো, আমার কাছে এইটা বড় কথা না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কি পরিচয় যাচ্ছে? আমরা ভারতবাসী হিসাবে একটু লজ্জিত হচ্ছি যে একটা রাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিচ্ছে, সেটা পালন করছে না যথাযথভাবে, মানুষকে একটা দুরবস্থার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এর চেয়ে আমি আর কি বলবো? অবশ্যই দর্শক বন্ধু,
আপনারা দেখছেন আপনার সকাল সকাল আমরা বিভিন্ন খবরের কাগজে যে লিড খবরগুলো আছে, যে হেডলাইনগুলো, সেটা নিয়ে হালকা কাজ করে বেরিয়ে যাই যাতে আপনাদের নজরে থাকে। আজকে বিষয়বস্তু আমরা যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা বিশেষ করে করব সেটা হলো জুট ইন্ডাস্ট্রি, জুট মিলের অবস্থা, জুট ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা নিয়ে কথা বলব। এক্সপার্ট আমাদের যারা রয়েছেন জুটের, তারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন। আর একটা খবরে আমরা যাই, ওবিসি কে এবার মোদিও হাতিয়ার করছেন। মোদি সরকার এতদিন ধর্মকে একটা হাতিয়ার করেছিল, আমরা দেখেছিলাম। ধর্ম ভিত্তিক হিন্দুত্ব, হিন্দু ভার্সাস একটা মুসলিম আর অন্যান্য ধর্মের লোক। এখন দেখা যাচ্ছে ধর্মের পরেও কিন্তু একটা জাতিগত ব্যবস্থাকে আরো হাতিয়ার করছে। মোদি বিভিন্ন জায়গা বলেছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, কিন্তু যখনই রাজনীতির কথা আসে, যখনই তার ভোটের ব্যাংকের ব্যাপার আসে, তখন তিনি কখনো ওবিসি হয়ে যান, কখনো আবার হিন্দু হয়ে যান, কখনো মন্দিরে শুরু করে দেন। মানে বিভিন্ন ভাবে আমরা দেখছি মোদিজি এবার বলছেন উনি নিজে ওবিসি, বিভিন্ন মঞ্চ থেকে বলছে আমি ওবিসি। ওবিসি নিয়ে একটা কার্ড তৈরি হচ্ছে, সেটাকে কিভাবে দেখছেন আপনি? ধর্ম নিয়ে তো খেলা আমরা তো বুঝেই গেছি কিভাবে হচ্ছে। কি রাষ্ট্র, পুরো রাষ্ট্র, বিভিন্ন রাজ্যও তাই করছে, পশ্চিমবঙ্গেও ধর্ম নিয়ে খেলা হচ্ছে। তো এই যে দলিত ব্যাপারটা, এই যে এখন জাতপাত দলিত ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটা ভোটের তাস খেলা হচ্ছে। অর্থাৎ এই জাতপাতটা এতদিন ভোটটা ধর্মটা পণ্য ছিল, এখন ভোটের পণ্য হচ্ছে এই জাতপাত। আমরা তো জানি দলিতদের ওপর তেমন অত্যাচার হয়েছে, কি হয়েছে। আমরা নিশ্চিত রোহিত ভেমুলার হত্যার কথা, নিজের আত্মহত্যার কথা শুনছি, কিভাবে এই রাষ্ট্রের প্রতি বিতর্ক হয়েছে, আত্মহত্যা করেছে, এবং হাতরাসের সেই মেয়েটির ধর্ষণ এবং পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা আমরা শুনেছি। এখনো ভোট রকম এই দলিতদের ভোট পাওয়ার জন্য উত্তরপ্রদেশে এটা বেশি রয়েছে, দলিতদের উপর অত্যাচার। ফলত উত্তরপ্রদেশের ভোট মানে আসন্ন। আর ভারতবর্ষের এইটা একটা সবচেয়ে বড় রাজ্য, যেখান থেকে মানে নেতৃত্ব থাকে ভারতবর্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্ব থাকে। সেই ভোটকে ক্যাশ করার জন্য এখন তিনি নিজের, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীও নিজেকে পণ্য করছেন। প্রধানমন্ত্রীকে এখন বলতে হচ্ছে আমি দলিত, সুতরাং এই ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান দলিত হচ্ছে আমি। এই রকম প্রচার কার্য করে দলিতদের একটা সমর্থন নেওয়ার জন্য তিনি একটা প্রচেষ্টা নিয়েছেন। এই যে ভারতবর্ষ, এই যে দলিতদের যে ভোট ব্যাংক করা, এখন দলিতরা কি মনে করতে পারে যে তাদের প্রধানমন্ত্রী খুব জাতে উঠাচ্ছে, খুব অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আসলে এই যে ভোটবাজি, কৌশলবাজি, যেহেতু ভারতবর্ষের মানুষ তথাকথিত আমি বলবো না সেভাবে শিক্ষিত নাই, ধরতে পারছে না তারা এইটা কি করে বুঝছে। এবং এর জন্যই তো এই সংবাদ মিডিয়াদের এই দায়িত্ব নিতে হবে এই কাজটা করবার জন্য, কারণ মিডিয়া তো ফর পিপল। অবশ্যই অবশ্যই কমলদা, আমরা আসছি এই আলোচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের একজন গেস্ট ইতিমধ্যে আমাদের সাথে রয়েছেন, তার কথাটা আমরা একটু যদি শুনে নিই। তার আগে আপনাদের দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে জানাই যে আপনারা সরাসরি এই যে নাম্বার আমরা স্ক্রিনে দিচ্ছি সেই নাম্বারে ফোন করে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন মাস্টার निजाम साहब। मास्टर साहब आपको आने बहुत बहुत स्वागत है। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, শুক্রিয়া। মাস্টার নিজাম আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। মাস্টার সাহেব জুট মিল আন্দোলনের নেতৃত্ব দীর্ঘদিনে আইএনটিটিউসির রাজ্য সহ সভাপতি পদে রয়েছেন। আইএনটিউসি আইএনটিউসির রাজ্য সহ সভাপতি পদে রয়েছেন। আর এর পাশাপাশি আরেকজন আমাদের বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ইতিমধ্যে। আমরা দেখতে পাচ্ছি संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। সঞ্জয় কুমার রায় রয়েছেন, তিনি পরিষ্কার করে জানিয়ে রাখি তিনি জুট আন্দোলনের দীর্ঘদিন ধরে, মানে অনেক ছোটবেলা থেকে এবং কম বয়সী থেকেই কাজ করছেন। যেহেতু তার বাবা যিনি ছিলেন তিনি জুট আন্দোলনের একটা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছিলেন, আর তার ছেলে হিসাবে তিনিও কিন্তু জুট শ্রমিকদের নিয়ে, জুট इंडस्ट्री নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সময় কাজ করছেন। हम आ रहे हैं আলোচনাতে আসবো, জুট নিয়ে আলোচনা আসবো, কিন্তু তার আগে আমাদের একজন সাংবাদিক রয়েছেন কল্যাণী থেকে, আমাদের কিছু আপডেট আছে সেটা নিয়ে নিই। কল্যাণী থেকে আমাদের সাংবাদিক একজন রয়েছেন মৃন্ময় লাহিড়ী। নমস্কার। মৃন্ময়, আজকে আমরা আলোচনায় যেটা আছি বিষয়বস্তু হচ্ছে জুট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে। আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, পশ্চিমবঙ্গের ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো নয়। এটা বারে বারে কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে, বারে বারে কথা উঠেছে, সেই কথার মধ্যে দিয়েই কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে।
সেই জায়গা থেকে কল্যাণী একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট কি অবস্থায় এই মুহূর্তে রয়েছে, হালেই আবার দু একটা ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বন্ধ হওয়ার মুখে ছিল, কি অবস্থায় রয়েছে যদি একটু জানাও। প্রথমেই আপনার খবরের সমস্ত দর্শকদের জানাই শুভ সকাল। আপনার সকাল সকাল জনতা বলছে এই প্রোগ্রামে আপনারা যোগদান করুন এবং লিঙ্কে আমাদের সঙ্গে আপনাদের বক্তব্য শেয়ার করুন। আমাদের ফোনও করতে পারেন, যে নাম্বারটি স্ক্রিনে দেওয়া হচ্ছে সেখানে। বিনয় দা একদমই ঠিকই কথা বলেছেন, বলেছো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম থেকে মৃত্যু, বিয়ে, ঐক্যশ্রী, যুবশ্রী সমস্ত কিছু প্রকল্প দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে, স্বাস্থ্যসাথী। তো কিন্তু তিনি একটা জায়গায়, বিরোধীরা যেখানে প্রশ্নটা তোলেন সেটা হচ্ছে সিঙ্গুর আন্দোলন, যেখানে টাটার সঙ্গে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের অবস্থা আপনি যদি জানান আসছি, আমাদের অনেক ভালো। হ্যাঁ আসছি সেই সিঙ্গুর আন্দোলনের পর থেকে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে, পশ্চিমবাংলায় কিন্তু সেরকম কোনো বড় শিল্প, ভারী শিল্প আসেনি, বরঞ্চ অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। সেই জায়গা থেকে কল্যাণীটা আজকে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, আমরা যে খবরগুলো দেখেছি, ক্যাসেল ইন্ডাস্ট্রি আছে, এফসিআই আছে, যেসব জায়গায় কিন্তু কর্মী বিক্ষোভ বিগত দিনে দেখা গেছে, সেই সব খবর আমরা আপনার খবরে দেখিয়েছি। এই ক্ষেত্রে বলে রাখি, ক্যাসেল ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যে আপডেটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আজ থেকে তারা আবার কাজে ফিরছেন। সেটা খুবই খুশির খবর। মালিক পক্ষের সঙ্গে তারা বসে ব্যাপারটি মিটিয়ে নিয়েছেন। যে বকেয়া বেতন বাকি ছিল সেটা নিয়েও তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্র মারফত আমরা জানতে পারছি। এবার আসি এফসিআই। এফসিআই কল্যাণীতে একটি বড় সংস্থা, যেখানে খাদ্য বন্টনের বন্দোবস্ত তারা করে থাকেন। কিছুদিন আগে আমরা দেখিয়েছি যে এফসিআইতেও একটি কর্মী বিক্ষোভ হয়েছে, এবং সেখানেও কিন্তু যেটা বলা হচ্ছে, যেহেতু যে কন্ট্রাক্ট, এরা কন্ট্রাকচুয়াল লেবার ছিল, সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে ছিল, সেই কন্ট্রাক্টটা শেষ হয়ে যাওয়াতে তাদের চাকরি হারিয়েছে বলে তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল, বকেয়া বেতন বাকি ছিল। সেই সবগুলো নিয়ে তারা যখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসে, সেখানে ঠিক হয় যে হয়তো সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি না থাকলেও তাদেরকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আবার এঙ্গেজ করে নেওয়া হবে। এই হচ্ছে আপডেট কল্যাণী থেকে। ঠিক আছে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। মৃন্ময় লাহিড়ী আমাদের প্রতিনিধি, তাকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, তারা তার বক্তব্য তুলে ধরেছে। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন সঞ্জয় রায়, মাস্টার নিজাম, জুট মিল আন্দোলনের দীর্ঘদিনের লড়াকু নেতা, নেতৃত্ব। মাস্টার সাহেব, আপনার কাছেই আসি। প্রথম থেকে আপনার থেকে, আপনি দীর্ঘদিন ধরে জুট মিল শ্রমিক, আপনি নিজেও একজন জুট মিল শ্রমিক থেকেছেন, আর জুট মিল আন্দোলনের সাথে দিনের আপনার যোগাযোগ আর আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে আপনি যুক্ত। যদি একটুখানি আমাদের ডিটেলস জানান, জুট মিল ইন্ডাস্ট্রির অবস্থায় এই মুহূর্তে কি দেখছেন। নমস্কার, আমি আপনার সকাল সকাল খবরে নিজেকে জুট মিল সম্বন্ধে বলার জন্য আপনি যে আমাকে সুযোগ করলেন, এর জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি যদি হিন্দিতে বলতাম তাহলে অনেক ভালো হতো। আপনি যদি অনুमति दें। संजय आचे बांग्लाते बोलिए जरूर बोलिए। बोल रहा हूँ कि जूट मिल पहले कहा जाता रहा सोने की चिड़िया, या यूं कहिए कि बंगाल की अगर सबसे अर्थनैतिक परिस्थिति को प्लेटफार्म पर लाकर चला रही थी जूट मिल और चाय मिल, चाय के कारखाने, चाय बागान। आज जूट मिल बोलने से हम लोग जूट मिल के श्रमिक नेता हैं, लेकिन खुद ही लज्जित होते हैं। जो अवस्था जूट मिल वर्करों की है, जो अवस्था जूट मिल की है, इसकी व्याख्या किया जाए तो शायद ही दिन और रात बीत जाएगी। मगर जो बातें आपने अभी बताई है, इसमें जैसे मेरे बंधु थे संजय के पिताजी, उनके ज़माने में जब हम लोग जूट मिल के वर्करों से बात करते थे तो उनकी एक अलग चिंताधारा होती थी, और यहाँ तक ऐसी परिस्थिति आ गई थी जूट मिल मजदूरों की लड़ाकू भावना को देखकर कि दूसरे इंडस्ट्री वाले जूट मिल के बच्चों और बच्चियों से संपर्क साधने की बात करते थे। मेरे कहने का मतलब जूट मिल के वर्कर काफ़ी लड़ाकू थे, और अपनी लड़ाकू भावना और लड़ाकू चरित्र के कारण ही पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हुए। यहाँ तक कि उनकी लड़ाई के कारण ही स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी डाउन होना पड़ा था, स्वीकार करना पड़ा था बोनस के आंदोलन को लेकर के, और बोनस में बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे बहुत से कानून हैं जो जूट मिल के वर्करों ने लड़ करके हासिल किया। आज की जो परिस्थिति है
केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें जूट मिल के वर्करों को सौतेला लड़का समझ रही है, सौतेला भावना दिखा रही है हम लोगों को। जूट मिल के वर्कर हैं ऐसा न तो राज्य की सरकार समझ रही है और न केंद्रीय सरकार समझ रही है। एक छोटा सा उदाहरण देंगे, जूट मिल के जो जूट आता है इस पर मुझसे ज़्यादा मैं संजय को आग्रह करूंगा कि वो बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा इस पर डिटेल्स प्रकाश डालेंगे। बोलिए मास्टर साहब। हेलो हेलो हाँ मास्टर साहब, हम लोग सुन रहे हैं मास्टर साहब, हम लोग सुन रहे हैं। बीच में एक फोन आ गया था। कह रहा हूं कि इस तरह की परिस्थिति में हम लोग अभी चल रहे हैं। अभी हमारे सामने समस्या पहले थी कि हम जूट मिल के वर्करों के दाबी को, डिमांड को कैसे हासिल करें। अभी हम लोग के सामने समस्या आ गई है कि जूट मिल के वर्कर तो है ही हैं, जूट मिलों को कैसे बचाया जाए। और अगर सचमुच सोचिएगा तो जूट मिल के वर्कर को बचाने का जिम्मेवारी केवल जूट मिल के नेताओं के कंधे पर डाल करके जूट मिल के मालिक आराम से सो रहे हैं। जूट मिल के जूट जो सप्लाई होता है इसके बारे में मैं संजय से निवेदन भी करूंगा कि वो इसको विस्तारित करेंगे। 6,500 और 7,000 दूध। मास्टर साहब, हाँ। इसी बीच में मेरा एक प्रश्न है। आप बता रहे हैं सिर्फ जूट मिल के नेताओं पर जिम्मेवारी, सरकार की क्या कोई जिम्मेवारी नहीं है जूट मिल को बचाने की, अपने लोगों को रोजगार को बचाने की? इनकी जिम्मेवारी क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? मैंने कहा ना कि इस पर मैंने तो इससे पहले कहा कि सरकार, दोनों सरकार इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। मैं पूरी हम लोगों के साथ सौतेला भावना उसका चल रहा, सौतेलापन का निर्वाह कर रही है, सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। अगर जूट मिल का ध्यान उनको रहता तो जूट मिल के इंडस्ट्री जिस तरीके से समय समय पर परिवर्तित भावना को लेकर के प्रोडक्शन को देती रहती है, जूट मिल के मजदूर जो कठिन परिस्थितियों में चल रहे हैं, इसमें परिष्कार रूप से भारत और बंगाल की उन्नति होता। मैं असल मुद्दा पर आना चाहता हूँ। मुद्दा यह है कि आप जानते हैं कि जूट मिल गंगा नदी के दोनों किनार पर बसा, और जी गंगा नदी के किनार पर बसने का कारण वो आप अच्छी तरह पहले ही बताया जा चुका। बिल्कुल बिल्कुल, रॉ मटेरियल को साफ सफाई और तमाम तरह की व्यवस्था की जाती सफाई है। और इसके व्यापारिक व्यवसाय का भी एक मुद्दा रहा है। जी तो जी अभी जो समस्या आ गई है, समस्या ये है कि जूट मिलों में मालिक जो आए हैं वो ज्यादातर करके मालिक नहीं है, व्यापारी है। ज्यादातर उनका ध्यान हमेशा यही रहता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा किसी मुनाफा तरह से लूट लिया जाए। मुनाफा लेकर के अपना रास्ता नापो। इसका उदाहरण आपको मिलेगा, कई करोड़ रुपया पीएफ का बाकी है और कई करोड़ रुपया ग्रेजुटी का बाकी है। इसमें कई मिलें तो ऐसे है कि पीएफ का पैसा जमा नहीं करने की वजह से मैंने आपको ब्लैक लिस्ट में चली गई है और बंद है, जिसमें प्रधान रूप से आपका वेवरली जूट मिल है। और वेवरली जूट मिल के मालिक अब बेचने के चक्कर में है या बिक्री होने के चक्कर में। इस तरीके से वहाँ के मजदूर मर रहे हैं, ये एक भावना है। दूसरी तरफ सरकार को जब भी यूनियन की तरफ से कोई सूचना दी जाती है तो 2-4 मीटिंग करके मामला को शांत करने की कोशिश करती है। मैं विशेष रूप से कहूँगा कि जूट मिल के वर्करों का संपर्क जूट के उद्योग, जूट उत्पादक किसानों के साथ भी है, मार्केट के साथ भी है, सरकार, राज्य सरकार के साथ भी और केंद्रीय सरकार के साथ भी। केंद्रीय सरकार का मूल दायित्व होता है ये जूट मिल में मिलने वाले सुविधाओं को किस तरीके से मजदूरों को सही तरीके से वो सुविधाएं उनको मिले और अच्छी तरीके से जूट के उत्पादन का व्यापार हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सैकिंग सेक्शन है, बोरे का, जो चीनी का बोरा या चावल का बोरा या गेहूं का बोरा या गुड़ का बोरा, जो भी थैला बनता है, केंद्रीय सरकार एफसीआई के माध्यम से या केंद्रीय सरकार अपने माध्यम से सारे मालों को खरीदती है और उसका मुआवजा देती है मालिकों को। आपको बता दूं कि जितना फ्रिंज बेनिफिट आता है वेतन का, सारे फ्रिंज बेनिफिट, ज़्यादातर फ्रिंज बेनिफिट केंद्रीय सरकार की तरफ से पेमेंट होता है। मालिक ले लेते हैं पैसा, ग्रेजुटी का पैसा ले लेते हैं, पीएफ का पैसा ले लेते हैं, सारे फ्रिंज बेनिफिट लेकर के मजदूरों को न पेमेंट करके अपने ही मुनाफा लेकर मिलों को बंद करके रास्ता ले लेते हैं। अभी क्या आज की वर्तमान परिस्थिति है,
बैरकपुर बेल्ट का जैसे आपने कहा 3 से 4 मिलें बंद है, प्रधान मिलें बंद है जो अच्छी तरह से चल रही थी, जिसमें नहटी जूट मिल है, JJI है, आपका इस तरीके से कई मिलें हैं जो बढ़िया रूप से चल रही थी, लेकिन वो बंद कर दिया गया केवल एक ही कारण दिखाकर कि पाट की कमी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत में कानून बोल के कुछ है? अभी हम लोग इसके पहले जो जूट मिलों में जरा सा भूकंप आ जाता था, जरा सा ये पावर की कट हो जाती थी, तो मजदूरों को कार्यरत मजदूरों को ले ऑफ का पैसा मिलता था। अभी जूट की कमी दिखाकर मालिक बंद कर दे रहा है, जबकि ले ऑफ के कानून में ये बात कहा गया है कि प्राकृतिक कारणों से, रॉ मटेरियल की कमी के कारण से या और कोई बड़ी गड़बड़ी के होने के कारण से अगर मिल बंद होता है तो मजदूरों का उसका मुआवजा ले ऑफ के रूप में उनके तनख्वाह का 50% उनको देना होगा। हमें बोलते हुए लज्जा आ रही है कि हम एक श्रमिक नेता हैं और ये कानून होते हुए भी हम इसको वसूल नहीं कर पा रहे हैं, और मालिक धड़ल्ले से अपने नोटिस में लिख दे रहा है कि जूट की कमी है इसलिए मैं मिल को नहीं चला रहा हूँ। इसमें सरकार के हाथ में पूरा। बिल्कुल मास्टर साहब आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल मालिक को कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, बेधड़क हो गया है और कुछ भी जो मर्जी वही कर सकता है। सरकार का जो नियंत्रण होना चाहिए मालिकों पर, सरकार की जो अंकुश होनी चाहिए वो नहीं है। और संजय जी से थोड़ा बात करेंगे, संजय जी से कहेंगे इस पर थोड़ा प्रकाश करें, प्रकाश डालें। बैरकपुर शिल्पांचल में जूट मिलों की अवस्था हमने मास्टर साहब से सुनी, सरकार की रवैया और मिल मालिकों को आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, संजय जी? जी, मैं अब तक के इस चैनल को सुबह सुबह जो प्रोग्राम होता है इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने इस विषय पर एक प्रोग्राम रखा। सबसे बड़ी बात है, निजाम साहब बोल रहे थे सारी बातों को, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये सौतेला बेटा वाला व्यवहार नहीं है। तैजो पुत्र बंगला में एक वर्ड होता है, जो लड़का को निकाल दिया जाता है उस हिसाब से दोनों सरकार ट्रीटमेंट कर रही। इसको तैजो पुत्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये स्टेट का मुद्दा है। स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी कानून है उनके लेबर दफ्तर नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाने का मूल कारण कानून में लचीलापन है। अभी मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, ग्रेच्युटी का जो विषय है, ग्रेच्युटी अभी इस विषय पर कैंसर बन के पड़ा हुआ है। हम लोगों ने जो अभी 21 ट्रेड यूनियन है, मांग पत्र के द्वारा मैं एक लिफलेट भी मार्केट में छोड़ रहा हूं, उसमें मैंने ये बताया है कि समस्या के साथ साथ उसका निदान क्या है। जैसे आप देखते होंगे कि 1984 के पहले तक प्रोविडेंट फंड धड़ल्ले से, जिस तरह आज ग्रेच्युटी की अवस्था है वही अवस्था प्रोविडेंट फंड की भी थी। लेकिन 1984 के बाद जब कानून में थोड़ा परिवर्तन करके कड़ाई किया गया और मालिक को गिरफ्तार करने का पावर मिला और कोर्ट में केस करने का, फाइल करने का पावर मिला पीएफ को, ठीक उसके बाद से ही पीएफ का पैसा लगभग आज इंडस्ट्री में 80 से 90% मिलों में अपडेट है। कुछ एक मिलों में जरूर बाकी है, जैसे वेवर्ली का उन्होंने कहा। लेकिन ग्रेच्युटी की जो बात यदि करते हैं तो उल्टा है। 5 से 7% मिल, गिन के 5 मिल है जहां पर ग्रेच्युटी अपडेट है, बाकी सारे मिलों में ग्रेच्युटी जानबूझकर पेमेंट नहीं है। अभी मास्टर साहब कह रहे थे कि फ्रिंज बेनिफिट के नाम पर केंद्र सरकार एनजेबी के माध्यम से जो ऑर्डर देती है नेशनल जूट बोर्ड के माध्यम से, उसमें सारा पेमेंट इनको ग्रेच्युटी, बोनस, ईएसआई, पीएफ सब कुछ मिलता है। लेकिन जब केंद्र सरकार देती है तो उनका ड्यूटी बनता है कि मैंने जो पैसा दिया वो पैसा जिसके मार्फत दिया, जिसके लिए दिया, उसको मिला कि नहीं मिला। केंद्र सरकार ये पल्ला झाड़ लेती है, ग्रेच्युटी तो राज्य सरकार का विषय है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एकदम गलत बात है। उनको पूरा पावर है ग्रेच्युटी में अमेंडमेंट एक्ट करके, और इमीडिएट मुझे लगता है कि ग्रेच्युटी रेगुलेटरी एक बोर्ड बनाना चाहिए, जैसे ईपीएफओ उन्होंने बनाया है, और उसी के अंदर यदि ये बोर्ड बनाया जाए तो इस बोर्ड के माध्यम से जैसे पीएफ का पैसा कट जाता है उसी तरह ग्रेच्युटी का भी पैसा कट के जमा होने लगेगा और कानून में अधिकार होगा, तो मुझे लगता है बड़ा जल्दी ग्रेच्युटी का भी प्रावधान क्लियर हो सकता है। अभी एक बहुत बड़ी समस्या मिलों में आ रही है, अभी आप जो बोल रहे थे मास्टर साहब
जूट के बारे में आपको बताएं, जूट का कोई कमी नहीं है। ये कहीं मालिक नहीं बोल रहे हैं कि जूट की कमी है। वो अगर नोटिस उनका पढ़ेंगे, बड़ा टेक्निकल है, ले ऑफ का पैसा नहीं देने के लिए वो उल्टा बोलते हैं कि प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। अब जरा रिकॉर्ड देखने की बात है, पता नहीं क्या हमको समझ में नहीं आता है कि सरकार तेजो पुत्र में बार बार इसलिए बोलता हूं कि सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है। जेसीआई के पास है कितना प्रोडक्शन होता है, एनजेबी के पास है कितना प्रोडक्शन होता है, सारा रिपोर्ट होने के बावजूद कोई आपस में तालमेल नहीं होने के कारण इसका फायदा मालिक लूट रहा है। आज सरकार जानबूझ करके ग्रेच्युटी का जब भी एग्रीमेंट होता है एक ही बात बोलती है, एज पर ला होता क्या है? आपको बता दें कि ग्रेच्युटी पेमेंट देने का नियम 30 दिन में है, लेकिन 45 दिन एक 84 के एग्रीमेंट के बाद 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया था। उस पीरियड के अनुसार 45 दिन दिया गया, पर ग्रेच्युटी जानबूझ करके मालिक नहीं देते। ऐसा कोई इच्छा नहीं है कि उनको देना है, वो जानते हैं कि ये पैसा नहीं देंगे और कुछ लोग को खुश करके मैं इसको काम चलाऊंगा। अभी आपको पता होगा कि बड़े धड़ल्ले से मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल लॉ को उड़ाते हुए सीधा एक बात कहते हैं, गेट पर किसी भी लीडर या कोई भी व्यक्ति यदि मैनेजमेंट के कोई भी बुराई के खिलाफ आवाज उठाती है तो संग संग उसको होता है गेट बंद। गेट बंद क्या है? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, नहीं नोटिस, आपको दरवान बोल देगा गेट में एंट्री नहीं। अब आप डिस्प्यूट कहां देंगे? ना डिस्प्यूट आपका बनेगा ना कुछ होगा। आप या तो माफी मांगे या मैनेजमेंट का पैर पकड़े या दूसरे लीडर को पैर पकड़े तो शायद अलाउ हो, अदरवाइज अलाउ आप नहीं होंगे। आप घूमते रहिए। ये बड़ा अच्छा नया प्रक्रिया बना हुआ है। अभी आपको बताते हैं बोनस की बात। बोनस में सीधा सीधा क्लियर है कि 8.33 मिनिमम 7,000 मैक्सिमम 15,000। अब धड़ल्ले से मालिक 7,000 के रेट पर बोनस पेमेंट करते हैं, तो मिनिमम जब 7,000 है तो मैक्सिमम 15,000 वाला क्यों नहीं पकड़ते? आज इंडस्ट्री में पेमेंट 12-13,000 14,000 तक चला गया है। मिनिमम तो 370 जो 385 पार है वो 10,000 के पार है, तो आप 7,000 का हिसाब क्यों करते हैं? अभी आप देखेंगे इंडस्ट्री में जो 6500 का रेट जो लोग जिसके बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में पार्ट नहीं मिल रहा है। अब आप जरा बताइए कि ये 6500 किसका रेट है? 6500 रेट है सबसे हाई गोल्डन फाइबर का, जिसका उन्होंने तय किया है। लेकिन इंडस्ट्री में सबको मालूम है कि जो जूट का प्रयोग करते हैं पार्ट का, वो पार्ट T3, T4, T6 जितना रद्दी से रद्दी माल, ज्यादातर मिल वही सब माल को उपयोग में लाते हैं। उसका रेट जरा आप देख ले। सभी लोग पेपर पढ़ते हैं, पेपर में जूट का रेट क्लियर आता है। अब जरा देखे ना कि T3, T4 का रेट क्या है। तो जब ये रेट लेकर के उनको एक्चुअल बात क्या है, मुझे जितना समझ में आता है कि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिली भगत है। केंद्र सरकार का ऑर्डर पूरा हो चुका है और मालिक का पेट भर गया। वो चाहते हैं कि जानबूझ करके मिल बंद करे ताकि वर्कर इधर से उधर भटके। आने वाला समय आप जानते हैं मई में लीन पीरियड आता है, ये इसको सीजनल इंडस्ट्री करना चाहते हैं। ये मालिक और सरकार की मिली भगत है और इसको हम यूनियन वाले जो बचा के आज मांग पत्र में होता क्या है, जो मिला है वो किस तरह कर्टेल हो जाए ये मालिक का दाबी होता है और मालिक के मांग पत्र पर चर्चा होती है। हमारे मांग पत्र पर तो हम लोग यही सोचते हैं कि जो मिला उसको कैसे बचाया जाए। इंडस्ट्री इस दौर से गुजर रहा है कि अगर सरकार अगर ध्यान नहीं दी ठीक ढंग से और सरकार इसी तरह मालिकों के गोद में बैठी रही तो मुझे लगता है आने वाले दिन में ये इंडस्ट्री वही पश्चिम बंगाल में जैसे चाय का, जैसे इंजीनियरिंग का, जैसे पेपर एंड पल्प का हुआ है। अभी केंद्र जो कानून लाया है आपको मालूम ही होगा कि उसने 4 कोड में जो बांटा है पूरे इंडस्ट्रियल लॉ को, वो इतना खतरनाक है कि हर इंडस्ट्री में अगर 299 आदमी तक है तो कोई सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू ही नहीं होगा। आपको मालूम है कि यदि ये मालिक अगर छोटे छोटे टुकड़े में मिल साइट, फैक्ट्री साइट को अगर बांट देंगे, एक मिल में 5 कंपनी बना देंगे तो किसी आज जिस सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं वो सोशल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा। लेबर दफ्तर एकदम नकारा है, कोई काम आज समझौता, कोई भी मिल बंद होता है लेबर दफ्तर एक मीटिंग बुलाती है और एक ही बात सुनने में आता है कि किसी भी तरह मिल को खोलो। समस्या जैसे कि तैसी ही रह जाती है। मिल खुलने की बात होती है और मिल खुलेगा क्या तो फलाने को इतना आदमी को बैठा दो, इतना प्रोडक्शन बढ़ा दो,
ये नवीनीकरण कर दो। नवीनीकरण क्या केवल मशीन का होता है? आपको मालूम होगा कि इंडस्ट्री में पहले मास्टर जी लोग देखे होंगे, हमने सुना था कि पहले स्कूल हुआ करता था, कैंटीन की बढ़िया व्यवस्था होती थी, फिर आपको मेडिकल की बढ़िया व्यवस्था होती थी। आज कहाँ है इंडस्ट्री में? आज सब कुछ धीरे धीरे कर्टेल करते करते पूरा इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चल गया है। हम एग्रीमेंट तो करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, डेली वेज नहीं होगा, लेकिन किसको नहीं मालूम है, सरकार को, लेबर दफ्तर को, हमको, आपको, कि डेली वेज में पेमेंट नहीं होता है। सभी जानते हैं, पर हमारे में से ही कुछ वर्कर है, ये अपने पाँव हम खुद काट रहे हैं। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हमारे लेबर, हमारे नेता, हम जागरूक होते हुए भी हमारी कमजोरी है, हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिसका पूरा पूरा फायदा मालिक और सरकार ले रही है। धीरे धीरे आप देखिए बाहर के लोग भी आना कम हो गए हैं। आज ट्रेनिंग के नाम पर मैनेजमेंट बोल रही है कि बनगांव, मुर्शिदाबाद और कहां कहां से लाएंगे, पर वो आके टिकेंगे नहीं। इसका क्या गारंटी है कि वो ट्रेनिंग लेंगे हुकुमचंद में और काम नेहट्टी जूट मिल में नहीं करेंगे? इसका कोई गारंटी नहीं। अभी लेडीज का बात कर रही है सरकार। संजय जी, हाँ मेरा हाँ जी प्रश्न जी। है, यूनियनों की भूमिका तो यही तक थी कि एक प्रेशर क्रिएट करना और व्यवस्था में एक मालिक के साथ और सरकार, एक उधर लेबर कमीशन है, सरकार है और मालिक के साथ समझौता करने के लिए ही तो यूनियनों की एक भूमिका रही है। लेकिन यूनियनों की भूमिका भी तो खत्म प्राय दिख रही है, कोई बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, उसका मूल कारण ये है। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। हेलो, मेरे आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, इसका मूल कारण ये है कि जो मिड लेवल के नेता हैं वो अब देख रहे हैं कि कोई भी काम यदि हम ऊपर लीडर और कंप्लेन करते हैं तो कोई फायदा लेबर दफ्तर के माध्यम से होता नहीं। काम तो हमको मैनेजमेंट से ही मिलना है, तो उनको एडजस्टमेंट करने सिवा कोई उपाय नहीं है। अब वो एडजस्टमेंट करने पे तो आंदोलन कहाँ से कर पाएंगे? आज इंडस्ट्री में कहाँ हड़ताल और भूख हड़ताल और वो सब आप देख पा रहे हैं? उसका मूल कारण यूनियन नहीं है। इतना ना मैनेजमेंट डरा दिया है, वर्कर आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर के परमानेंट हो ही नहीं रहा है। अब परमानेंट स्पेशल बदली वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। आज आप हर इंडस्ट्री में यदि 4000 3000 वर्कर हैं तो आप मान लीजिए 75% जो लोग हैं वो कैजुअल और बदली के आधार पर ही है। आज तो रिटायरमेंट में भी कोई नहीं जाता, रिटायरमेंट सुपरनुएट के रूप में बदल गया है, जिससे आप ग्रेचुटी का मामला नहीं कर पाए क्योंकि आप परमानेंट नहीं है। तो ये जो लचीलापन आया है, ये मैनेजमेंट, कहने का अर्थ है कि पहले का आप जानते थे कि राजा, एक पागल राजा आकर के जो कानून बनाएगा वर्कर का या आम आदमी क्या करेगा? उसको तो एडजस्ट, एक रिवोल्यूशन ही जरूर होगी। ये बात सही है कि आने वाला दिन में मुझे लगता है कि जूट ने पूरे मैंने भारत को ही नहीं विश्व को रास्ता दिखाया आंदोलन का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला दिन में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा इस पूरे गैर कानूनी कामों के विरुद्ध, जो रंग लाएगा। और ये ठीक आपको बता रहे हैं कि वर्कर पश्चिम बंगाल का सब समझता है, और ये समय नहीं लगेगा। जिस दिन वो अपना मूड बदलेगा, सारे चीज धरे के धरे रह जाएंगे, काम अपने आप हो जाएगा। कोई भी चीज का कहने का अर्थ है, आपको मालूम ही होगा कि गिरते 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 इतना गिर जाता है कि नीचे गिरने का जगह नहीं, और ऊपर उठते उठते इतना उठ जाता है कि ऊपर जाने का जगह नहीं। तो आज मजदूर नीचे गिरते गिरते इतना गिर गया है, या आंदोलन या लीडर या जो भी बोलिए, आज हम लोग इतना ग्रसित हो गए हैं कि आने वाला दिन में अब नीचे जाने का जगह नहीं, ऊपर ही आने का है। और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाला दिन में फिर सुनहरा इंडस्ट्री के रूप में जूट खड़ा होगा। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमारे एक दमदम से एक प्रतिनिधि हैं जो कुछ अपडेट लेकर आए हैं। दमदम के प्रतिनिधि हैं, तौफीक गिरी हैं, कुछ अपडेट लेकर आए। কি আপডেট রয়েছে তৌফিক? যেটা প্রথমেই বলবো, আজ সকালবেলা ঠিক আমার স্ট্রিটে লেগে যায় একটি বিধ্বংসী আগুন, কিন্তু কারোর খবর হওয়া তার আগেই দমকলের 4টি ইঞ্জিন কিন্তু সেখানে খুব সক্রিয়ভাবে সেখানে কাজ চালায় এবং সেখানে কিন্তু জল দিয়ে সে আগুনটির যে পরিস্থিতি ছিল সেটিকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি যেই খবরটা সকাল সকাল পাওয়া গেছে যে আজকে কিন্তু তাপমাত্রা একটুখানি
উঠেছে, ফলে স্বস্তিতে থাকবে একটু মানুষ, কিন্তু তার পাশাপাশি কিন্তু ঝড় বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা একটি থেকেই যাচ্ছে। এই মুহূর্তে সব থেকে বড় যে বিগ ব্রেকিং থাকছে সেটা করোনার পরিস্থিতি কিন্তু আবার বেড়েছে এবং মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে আজকে 38, অর্থাৎ মৃতের সংখ্যা বেড়েছে এবং আক্রান্তের সংখ্যাও কিন্তু বেড়েছে। ফলত তার পাশাপাশি লোকের মুখে কিন্তু মাস্কের যে অসচেতনতা দেখা গেছিল, সেই অসচেতনতা কিন্তু একটু সচেতন হয়েছে মানুষ, কিন্তু এখন প্রায় জায়গাগুলোতেই কিন্তু সচেতনভাবে মাস্ক পরে দূরত্ব বজায় রেখে কিন্তু তারা রাস্তায় বেরোচ্ছে। এবং পাশাপাশি যে খবরটি আমি জানাবো সেটা হচ্ছে বড়নগর মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারে যে বড়নগর বাজার, সেটি কিন্তু সপ্তাহে 4 দিন বন্ধ রাখার কথা ছিল, এবং কামারহাটি বাজার যেটা সপ্তাহে 3 দিন বন্ধ রাখার কথা ছিল সেটা কিন্তু সক্রিয়ভাবে বন্ধ রাখা হচ্ছে, এবং সেখানকার মানুষরাও কিন্তু সক্রিয়ভাবে এই লকডাউনটিকে পালন করছেন এবং ঘর থেকে বাইরে বেরোলে তারা কোনো কারণ ছাড়া বাইরে বেরোচ্ছেন না, অন্তত লকডাউনের দিনে। এবং লকডাউন পরিস্থিতিতে বাজারগুলো কিন্তু একদমই স্বাভাবিকভাবে বন্ধ থাকছে। বিনয় দা। অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। সৌভিক ছিলেন, সে আপডেট জানালেন যে কি অবস্থা রয়েছে আজকে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে কিন্তু লকডাউন রয়েছে, টিটাগড় থেকে বীজপুর পর্যন্ত কমপ্লিট লকডাউন করা হয়েছে। কোনো দোকানপাট কোনো কিছুই যাতে খোলা না থাকবে না সেই কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ইতিমধ্যে আমরা যেটা আপনারা জানেন যে পুরো কমপ্লিট লকডাউনে আমরা রয়েছি আজকে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে যারা রয়েছেন তাদের জন্য। अब सीधे सीधे हम लोग वापस लौटते हैं जूट मिल पर। मास्टर साहब हम लोग के साथ हैं और संजय जी हैं, दोनों ही लंबे समय से जूट इंडस्ट्री पर काम कर रहे हैं और बेहतर काम किए हुए हैं। और हम लोग सुन रहे हैं कि मिलों की अवस्था में जो त्याज्य पुत्र मतलब एकदम निष्कासित बेटे की तरह व्यवहार कर रही है दोनों सरकारें। सरकार जो दोनों सरकारों की जो भूमिका होनी चाहिए थी, कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन एक बड़ा इंडस्ट्री है जूट मिल, यानी कि एक श्रम का एक बड़ा सा केंद्र। मास्टर साहब आप ही के पास आ रहे हैं। एक जूट मिल एक समय था जो मतलब इसमें लगभग बेहद माने लाखों श्रमिक इसके साथ जुड़े हुए थे। आज की अवस्था क्या देख रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? मास्टर साहब सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आवाज जा रही है? आवाज आ रही है मास्टर साहब, बिल्कुल आ रही है। हम आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा फ्रेम में रहें। अभी मैं थोड़ा नहीं, एक्चुअली बताते चलूं कि जूट बैरकपुर शिल्पांचल में जो जूट की इंडस्ट्री थी उससे जुड़ी कुछ खास बातें हमारे साथ हैं कमल साहा जो बताएंगे। दादा কিভাবে দেখছেন এই জুট ইন্ডাস্ট্রি একটা বিশাল বড় জায়গা, এইখানে বড় বড় নেতৃত্ব যারা শ্রমিক নেতারা আছেন, মোহাম্মদ আমিন সাহেব ছিলেন, এছাড়াও আরো কিন্তু আপনি যদি একটু প্রকাশ ডিটেলস জানান। এই বারাকপুর শিল্পাঞ্চল মানে কি বলবো, এই অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গবাসীর মানে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে জড়িত। এখানে যে প্রখ্যাত সমস্ত মজুর নেতা ছিলেন উল্লেখযোগ্যভাবে এখানে কার্তিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জি এসছেন, এখানে এসছেন মোহাম্মদ ইসমাইল, এখানে ছিলেন কি বলবো আমি, এখানে মোহাম্মদ আমিনের মতন লোক ছিলেন এখানে ছিলেন মানে মহিলা নেত্রীর সম্পর্কিত যদি আমি বলি যে সন্তোষ কুমারী দেবী 1923 সালে এইখানে চট্টল মজদুর যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সংঘ যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, শ্রমিক চেতনা বাড়ানোর জন্য তিনি যে কাজগুলো করেছিলেন এবং সাপ্তাহিক নামে একটা শ্রমিকদের জন্য পত্রিকা তিনি এখানে বার করতেন, শ্রমিকদের জন্য একটা নারীদের ভূমিকা। এই কমরেড যে সুধা রায় যে তিনি এই চট্টল মজদুর ছিলেন, তিনি শিক্ষয়িত্রী ছিলেন কমলা গার্লসের। এই যে কমলা গার্লসের মানে ভাববেন উনি এই 1952 সালে এই বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে, যদিও এটা তখন হুগলি লোকসভা কেন্দ্র ছিল, সেখান থেকে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। এইখান থেকে মহিলা নেতৃত্বের কথাই আমি বলছি, এ আমাদের কাছে একটা মানে অবিস্মরণীয় ভূমিকা। এইখানে বিমলা প্রতিভা মুখার্জি তিনি শ্রমিক আন্দোলন করেছেন, মৈত্রেয়ী মানে তিনি এইখানে আন্দোলন করেছেন এবং বিধান রায়ের আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী রেণু চক্রবর্তী তিনি এই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে এখানে সংগঠিত করেছেন এবং এইখানকার কেন্দ্র থেকে তিনি এইখান থেকে দাঁড়িয়েছিলেন। আরো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও এই চট্টলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আপনারা তো নিশ্চিত জানেন সমরেশ বসুর নাম।
সমরেশ বসু নিজে চট্টল মজদুর ছিলেন, চট্টল শ্রমিক ছিলেন, তাদের নিয়ে তিনি উপন্যাস লিখেছেন জগদল জগদ্দল। এখানে জ্যোৎস্নাময় ঘোষ যে সাহিত্যিক, যে নাট্যকার ছিলেন, তিনি জগদল নামে নাটক লিখেছেন। তিনি এইখানে যে একজন কামগার করিম ছিলেন, আমরা তাকে বলতাম যে আমারই বন্ধু, তিনি এই হুকুমচাঁদ জুটমি, যেটাকে আগে নাম নাম ছিল আমরা বলতাম মনোহরি পল, সেইখানে তিনি কাজ করতেন। এই যে একটা মানে সাংস্কৃতিক এবং মানুষের জীবন নিয়ে একটা বিধৌত এই যে জীবন, এই যে চট্টল মানে এই এলাকা, এতে আমি নিজেও অনেকবার জড়িত হয়েছি এবং গত 3 বছর আগেও এইখানে যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেইখানে এই যে হিন্দু মুসলিম যে ঐক্য, আসলে এই বারপুর এই শিল্পাঞ্চলটাকে বলা হয় ছোট ছোট মিনি ভারতবর্ষ বলা হয়। এর চেয়ে সম্মান আর কি হতে পারে? সেখানে শ্রমিকরা দ্রুত তার মধ্যে আছে, সেখানে মানুষের দিকে, এই মানুষদের দিকে রাষ্ট্র, এই রাজ্য সরকার বা ট্রেড ইউনিয়ন এর লোকরা যদি সম্মিলিত ভাবে যদি এই কাজটা করে, আলোচনা ছাড়া মধ্য দিয়ে সব জিনিসই মিটতে পারে। ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়নটা যদি ট্রেড হয়ে যায় আর শ্রমিকের দিকে যদি না তাকায়, এবং রাষ্ট্র বা রাজ্য যদি, সরকার যদি শ্রমিকদের দিকে মন না থাকে, তাহলে এই অবস্থা হতে বাধ্য। কত ঝুঁক মিছিল সেটা যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে, যে নিশ্চিত ভাবে আপনারা বলছেন কিনা জানি না, এই জঙ্গল জুট মিল বন্ধ, মানে জানুয়ারি এই যে নতুন বছর শুরুতে 4-5টা জুট মিল তো বন্ধই হয়ে গেল। যে এই নতুন জুট মিল গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে আপনারা জানেন। নর্থ জুট মিল, নদিয়া জুট মিল, তারপর তোমার এই যে জগদল জুট মিল, এইগুলো তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल एक छोटा सा इतिहास, मतलब इसमें तमाम तरह के जो बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, जिन्हें मतलब बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो लोग नहीं पहचानते हैं, ऐसे ऐसे शख्सियत इस जूट श्रमिकों को लेकर, जूट मिल को लेकर आंदोलन में जुड़े रहे। না না, আমি আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলছি, আপনারা জানেন কিনা, পারভেজ সাহিদি কবি, এই যে 1952 সালে এই যে হুকুমচাঁদ জুট মিলে এই বোনাস বৃদ্ধির দাবিতে যে আন্দোলন হয়েছিল, তিনি নেলসন রোডে একটা মঞ্চ হয়েছিল, সেইখানে তিনি সারা রাত মুজারা করে গিয়েছিলেন যে বোনাস দেনে হোগা, বোনাস দেনে হোগা। এই যে শ্রমিকদের আন্দোলনে তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন, এই একটা ইতিহাস বহন করছে এই অঞ্চল। সুতরাং আমাদের সেটাকে সম্মান দেওয়া উচিত, এটা আমাদের ঐতিহ্য, এইটাকে আপনারা ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আপনাদের এটাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। भार्गव जी, मेरा नमाज का टाइम होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम मास्टर साहब से एक और प्रश्न ले रहे हैं। मास्टर साहब, ये एक छोटा सा इतिहास हम लोग देखें कि तमाम तरह के शख्सियत जो हैं इस जी। जूट आंदोलन से जुड़े रहे हैं और एक छाप छोड़े हुए हैं, सरकार को झुकाने में सफल रहे हैं, लेकिन आज वो अवस्था नहीं है। सरकार और मिल मालिक, यहाँ तक कि सरकार तो सरकार, मिल मालिक उससे ऊपर जा चुके हैं और कोई परवाह नहीं करे श्रमिकों की। बताएं बताएं क्या देख रहे हैं? एक ही शब्द है ईमानदारी, एक ही शब्द है ईमानदारी। इस ईमानदारी को हमारे पूर्वजों ने निभाया, उस जमाने के मालिकों ने निभाया, उस जमाने के केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने भी भरपूर तरीके से उसको पालन किया, जिसमें विधान राय का नाम आपने कहा। अब तो सिद्धार्थ शंकर राय या गोपाल दास नाग के टाइम तक बंगाल की सरकार या दिल्ली की सरकार ईमानदारी के साथ इसको पालन किया। कहने का मतलब, संजय ने आपको कहा हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, एग्रीमेंट होता है। चार्टर ऑफ डिमांड जो हम लोग देते हैं, उस चार्टर ऑफ डिमांड को पूरा तरीके से खंगालती है सरकार। खंगालने के बाद तो मीटिंग बुलाती है, ट्राइपार्टाइट मीटिंग, त्रिदलीय मीटिंग बुलाती है, और उसमें त्रिपक्षीय मीटिंग में आलोचना होती है। सरकार को आलोचना के माध्यम से ये बात कहना चाहिए कि ये यूनियन वालों का डिमांड सही है और आपको देना होगा, जो पहले की सरकारें कहती थी। आपको याद होगा, हाउस रेंट अलाउंस जब लागू हुआ था, मालिक देने से इनकार कर रहे थे। काली मुखर्जी, श्री गांगुली, स्वयं बैजनाथ राय के पिताजी, माने ये संजय के पिताजी हमारे दोस्त बैजनाथ राय, इनके जमाने में जब हाउस रेंट लागू हुआ, मैं स्वयं मौजूद था वहां। जब मालिकों ने इनकार किया तो गोपाल दास नाग जो लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा अगर आप नहीं देंगे तो काली गाड़ी नीचे खड़ी है, आपको लाल बाजार भेज देंगे। कहने का मतलब क्या है, उस वक्त ईमानदारी के साथ सरकारें काम कर रही थी। आज की सरकारें ये कहती है हड़ताल करते देबो ना, हड़ताल होबे ना, हड़ताल करते होबे ना। वही सरकार अगर ये कहे कि मिल बंद करते देबो ना, मिल बंद करना नहीं होगा, किसी भी हालत में चलाना होगा, उसका मुआवजा देना होगा,
यूनियन चिल्लाती रह जाती है और सरकारें सुनती नहीं है। छोटा सा आपने हमारे आपके बगल में जो हमारे बंधु बैठे हैं साहित्यकार, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से बारे में उन्होंने बताया। आपको बता रहा हूँ के बारे में, मजदूरों को धोखा दिया गया। लॉकडाउन किया गया तो बोल दिया गया लॉकडाउन का पैसा मिलेगा, मजदूरों को ये विश्वास हो गया, तो विश्वास 15 लाख में बदल गया। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वासघात हुआ मजदूरों के साथ। लॉकडाउन करके मिलों को बंद किया गया और उसके बाद लॉकडाउन का वेज देने के बजाय तुरंत विड्रॉ कर लिया गया कि लॉकडाउन का पैसा नहीं देंगे। संजय ने बोनस के बारे में कहा, आप देखिएगा ईएसआई 21,000 तक तनख्वाह पाने वालों को ईएसआई कटेगा, 21,000 के ऊपर पाएंगे उनका नहीं कटेगा। तो काटने में 21,000 तक आप ले लिए, देने में आप 7,500 तक ही, 15,000 ही तक सीमित है और मिलता भी नहीं है। 15,000 7,500 के भी जाते हैं हिसाब से। ये की बातों को मैं अक्षर से समर्थन करता हूँ। उगता हुआ सितारा है, मेरा भतीजा है। मैं आपके प्रभात आपके खबर बोलना चाहूंगा कि आप जो इस मीटिंग, मैं खुश हूँ। आशा करता हूँ कि अगली लड़ाई हम लोग तगड़ा लड़ेंगे। मैं क्षमा करता हूँ, नमाज के टाइम में पड़ेगा के साथ आलोचना करें। मास्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर साहब युक्त थे, जुड़े हुए थे। मास्टर साहब को जाना पड़ा, जाने की जरूरत है, वो पहले ही कह देते। संजय जी, जो हम लोग बोल रहे हैं, ये आंदोलन में बड़े बड़े लोगों के नाम उठे, आंदोलन का छाप छोड़े हुए हैं। और मास्टर साहब ने भी कहा कि एक समय था जब सरकार भी ईमानदारी से श्रमिकों का साथ देती थी, श्रमिकों के पक्ष में थी। अब तो विश्वासघात हो रहा है, सरकार ही विश्वासघात कर रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? भारद्वाज जी, इस पर बहुत बढ़िया एक फ्रेज है हिंदी में, उसको मैं कहना चाहूंगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा, टके सिर खाजा वाली हालत है। आप अपना कंप्लेन किस पर लॉन्च करिएगा? बड़ा सीधा बात है। आज मांग पत्र मैं किसके सामने रख रहा हूं? सरकार के सामने कि मालिक के सामने कि लेबर दफ्तर के सामने? जो करता धरता है, अगर वो उस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं और न समझने का चेष्टा कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि रिजल्ट ऐसा ही होगा। और कभी भी कोई भी सिनेमा इतिहास उठा के देख लीजिए, ये हमेशा सच रहा है कि अंत में जो भी विलेन रहा है, गलत रहा है, वो खत्म हुआ है, सच्चाई की जीत हुई है। अभी मास्टर साहब कह रहे थे, पूरा उम्मीद है कि सच्चाई की ही जीत होगी। लेकिन इस उम्मीद के बीच में लोग मर मर कर जी रहे हैं। जूट श्रमिकों की हालत दयनीय है, बेहद दयनीय है। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जूट श्रमिक अब पलायन कर रहे हैं, क्षेत्र से छोड़कर किसी और जगह में शिफ्ट हो रहे हैं। जूट के इंडस्ट्री में श्रमिकों का आना बहुत कम हो गया है। इस परिस्थिति को देखते हुए ये भी तो एक सच्चाई है। आप जरूर वाकिफ होंगे कि तमाम जो जूट श्रमिक थे, जो बाहर से आया करते थे और जूट में अपना समय देते थे, अब धीरे धीरे वो किंतु अपने वापस लौट रहे हैं, अपने दूसरे जॉब में अपने आप को लीन कर रहे हैं। और जूट श्रमिक के जो बच्चे थे वो भी किंतु अब जूट श्रमिक में आना नहीं चाह रहे। तो ऐसे में जूट श्रमिक के लिए ऑप्शन क्या बचता है? जी बोलिए। नहीं, इस विषय पर मैं दो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात कि आप देखिए कि 2010 तक मजदूरों की संख्या इंडस्ट्री में लगभग 2.5 लाख थी। उस समय एज पर रिकॉर्ड ऑफ एनजेबी, जो उस समय एनसीजेडी कहा करते थे या जूट मिनिस्ट्री कहते थे, उसके अनुसार 16 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ करता था। आज ये लॉकडाउन के पहले तक ये 1,75,000 के लगभग हो गए हैं और प्रोडक्शन जो है आपको लगभग 14 साढ़े 14 लाख मीट्रिक टन हो रहा है। सीधा अर्थ है कि मजदूर कमे लेकिन प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई। उसका मूल कारण मैं आपको बता रहा हूं कि तांत जहां डबल मशीन एक आदमी चलाता था, आज उस तांत को एक आदमी 4, 6, 8 मशीनें को चला रही है। ठीक है, ये नवीनीकरण का नतीजा है। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि बच्चे नहीं आ रहे इंडस्ट्री में,
उस पर मैं बोलना चाहूंगा, सरकार इसका एक रास्ता जिसका हम लोगों ने विरोध किया है, अभी काकुड़गाछी सरकार का एक प्रोग्राम हुआ था लेबर इंस्टीट्यूट में, मैंने उसमें खस के कहा था सरकार मालिकों के क्या बोलते हैं संलग्न से ये प्रस्ताव लाई थी कि महिलाओं को काम दिया जाए, मतलब जो मजदूर की औरतें घर में हैं उनको नाइट शिफ्ट में काम दिया जाए। अब जरा औचित्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मजदूर की औरतों को तो बोल रहे हैं नाइट शिफ्ट पे लाएंगे, पर व्यवस्था कुछ नहीं है, ना सेफ्टी का है ना कोई सिस्टम का है। लेकिन इसमें टेक्निकल बात आपको बताना चाहूंगा कि शुरू से इंडस्ट्री में ए और बी में जो प्रोडक्शन हुआ है वो नाइट में नहीं हुआ है, नाइट शिफ्ट लगातार रहा है, 7.5 घंटे का शिफ्ट लगातार होता है और प्रोडक्शन हमेशा कम होता है। तो औरतों को लाने से क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? अब इसका मतलब कि मजदूर जो ए शिफ्ट या बी शिफ्ट करके जाएगा घर में, उसको खाना भी नहीं मिलेगा अगर औरत इंडस्ट्री में आ जाएगी। तो ये अपना रास्ता खोज लिए हैं, सरकार उनका समर्थन भी कर रही है और हम उसका विरोध करें तो बोलते हैं औरत का सशक्तिकरण का विरोध करते हैं, हम तो औरत को काम देना चाहते हैं। कितना मजे का बात है, यही मैं आपको बताना। हाँ बताइए। ये प्रश्न तो उठता ही है कि आप औरतों को सिर्फ खाना बनाने वाले ही सोच रहे हैं तो कैसे चलेगा? वो मजदूर श्रमिक अगर है। नहीं मैंने जी जी बोलिए बोलिए। नहीं, मैंने इस पर सुझाव दिया कि आप तीनों शिफ्ट में उनको लीजिए, ए बी सी तीनों में लीजिए और उनके सुरक्षा का व्यवस्था कीजिए। औरतों के लिए टॉयलेट अलग होना चाहिए, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी या जो भी उनके डिपार्ट के चार्ज इंचार्ज जो भी होंगे उसमें लेडीज को रखिए। इस तरह की सुविधाएं देके आप औरत को काम कराइए। औरत तो हर इंडस्ट्री में आज आगे है, पर जूट इंडस्ट्री की जब बात होती है तो केवल नाइट शिफ्ट क्यों? शंका यहाँ है मेरा, मैं इसके भी खिलाफ मैंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब क्या जूट श्रमिकों को महिलाओं को लाने की नौबत क्यों आ रही है? महिलाओं को जनरली मतलब हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर से ही देखते रहे हैं और जूट तो हार्ड वर्क है, बहुत काफी कठिन परिश्रम का माना जाता है। तो अब क्या पुरुषों की कमी महसूस की जा रही है उसमें कि महिलाओं को लाया जा रहा है? मतलब एकदम आपने सही बात को पकड़ा। मैंने टेक्निकल यही बात की थी कि औरतें जहां भी हैं, काम दो तरह का सॉफ्ट एंड हार्ड होता है। तो आप इस हार्ड वर्क में ला रहे हैं, स्वागत है, तीनों शिफ्ट में लाइए। वर्कर नहीं है, आप एक तरफ बोलते हैं वर्कर नहीं है, लेकिन आप दूसरे तरफ देखिए कि कैश पेमेंट में वर्कर कहां से आ जा रहे हैं? आप बताइए, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं वर्कर नहीं है, दूसरे तरफ इंडस्ट्री में कैश पेमेंट पर आप नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात और बताएं कि ऐसा एक मिल उठा लीजिए जहां वर्कर को गेट से बाहर बैठाया नहीं गया। एक मिल, कम से कम 50 से 100 वर्कर केवल और केवल इसलिए बाहर है कि उन्होंने मैनेजमेंट के गलत कामों के विरुद्ध आवाज उठाई। तो आप दोनों बात तो नहीं, दोनों सिक्का का पहलू तो नहीं हो सकता। एक तरह आप बोल रहे वर्कर, ये बात सही है कि अब यूपी बिहार के लोग नहीं आ रहे हैं, वो दिल्ली गुजरात के तरफ जा रहे हैं। आप बताइए पेमेंट दयनीय यदि रहेगी, आज पेमेंट इंडस्ट्री का क्या है? 370 रुपया एक बाजार वाला बैठ करके 3 घंटे में कमा लेता है, वो क्यों 8 घंटा मेहनत करेगा शारीरिक? तो आप पेमेंट, आपका इंडस्ट्री का जो कमाई है, आप एक तो छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि आज एक जूट मिल बिकता है तो ये चील के तरह दूसरे जूट मिल का मालिक पहुंच जाता है और उसको खरीदना चाहता है। बाहर के लोग को एंट्री नहीं देते। अगर ये नुकसान में है तो लेते क्यों भैया आप? अगर मान लीजिए जूट इंडस्ट्री आप हमेशा अकाउंट्स में नुकसान में दिखाते हैं तो खरीदते क्यों? दुनिया तो कोई पागल नहीं है कि खरीदेगी नुकसान वाली इंडस्ट्री को। तो कहीं से भी ये गर्दा भी सोना के भाव बिकता। कहते हैं कि सोनार के दुकान में जो गर्दा है वो भी सोना है, ठीक उसी तरह जूट मिल में जो गर्दा है वो भी सोने का भाव बिकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनका व्यवहार पॉजिटिव रहे, सरकार पॉजिटिव रहे, तो वर्कर बेकार लोग आज भी हैं इंडस्ट्री में। अगर रेट सही मिल जाए वर्करों को तो मुझे पूरा विश्वास है कि इंडस्ट्री लबालब भर जाएगी वर्करों से। बिल्कुल संजय जी, और थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। बिल्कुल हम थोड़ी सी और बात करेंगे आपसे थोड़ी देर के लिए। हमारे एक प्रतिनिधि हैं हरिन घाटा से, कुछ अपडेट लेकर आए, थोड़ा उनका सुन ले। हरिन घाटा से गुड्डू दास हैं। गुड्डू की अवस्था রয়েছে हरिन घाटे, কোনো আপডেট? এখনো অব্দি যে ব্যবসায়ী সমিতি জাগুলি মোড়ে যারা ব্যবসা করতো দীর্ঘদিন, তাদেরকে হরিণঘাটা পৌরসভা থেকে গতকাল যেমন বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটি কর্মতীর্থ যে রয়েছে অতি পুরনো, সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে 240 জনকে ইতিমধ্যে স্থায়ীভাবে ওখানে ব্যবসায়ী সমিতিদের পক্ষ থেকে বসা হয়েছে। আজ পৌরসভার তরফ থেকে রীতিমতো
পেট্রোলিং গাড়ি নিয়ে পৌরসভার তরফ থেকে একাধিক জায়গায় খতিয়ে দেখছিল কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কেন যেভাবে পরিস্থিতি কোভিড এর দিকে তাকিয়ে যেভাবে হরিণঘাটা একাধিক সংক্রমণ বেড়ে চলেছে, পৌরসভার তরফ থেকে নজরদারি দেওয়া হচ্ছে যে বিনা মাস্কে ইতিমধ্যে বাজারে কেউ আসছে কিনা সেদিকেও নজরদারি দিচ্ছে পৌরসভা এবং প্রশাসন। अनेक अनेक धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद। संजय जी, चलते चलते कार्यक्रम को समाप्त करने का भी समय हो गया है। हम सुन रहे हैं, संजय जी को सुन रहे हैं, तमाम अवस्थाओं को देख रहे हैं। चलते चलते संजय जी, आपसे चलते चलते केंद्र सरकार ने तो जूट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उनके माल को खरीदने के लिए हमेशा एक नया प्रावधान दिया है, तो इसके बावजूद क्राइसिस कहाँ आ रही है? मिल मालिकों का सिर्फ की मानसिकता ही क्राइसिस है, न कि सचमुच में कोई दूसरा उद्देश्य लग रहा है? मिल मालिक तो यहाँ से हमेशा मुनाफा लूट के चला जाता है। कोई भी मिल इस तरह से बिकता है तो लगातार लोग आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि मिल मालिक मिलों संजय जी फ्रेम में नहीं है, कोई दिक्कत हो? সঞ্জয় রায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে, তার বক্তব্য আমরা শুনছিলাম। যে মিলের অবস্থা সমস্ত কিছু দেখলাম, শেষ অবধি আমরা যে অবস্থায় ছিলাম সেখানে ফিরে আসছি। মিলের অবস্থা আমরা শুনলাম, খুবই দয়নীয় অবস্থা আছে। মানে শ্রমিকরা প্রতারণার শিকার এমন হয়েছে, হতে 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 একদম শেষ দিকে চলে গেছে, তার আর পেছনের জায়গা নেই। শ্রমিকদের বাচ্চারা আর শ্রমিকদের শিশু যারা ছেলে বাচ্চা সন্তান আছে, কেউ এই জুট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে চাইছে না। এমন অবস্থা, সরকার বলছে, শ্রমিক মালিকরা বলছেন ওদের বউদের কাজে দেবে। জুট মিলে এখন নাকি নাইট শিফট চালাবে, মহিলাদের কাজ দেওয়া হবে। সঞ্জয় জি যেটা বললেন, আরে তুমি তো বলছো কাজ দেবে, তো ঠিক আছে, কি কাজ দেবে? এ তো পার্মানেন্ট কোনো জব নয়। এখানে এই যে এই শ্রমিকে দুটো শ্রেণী আছে, ভাগওয়ালা আর বদলি। তার মানেটা কি? কোনো শ্রমিক নেই, সোশ্যাল সিকিউরিটি নেই, সোশ্যাল সিকিউরিটি নেই। আর তারপরে তো তুমি এদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেখোই। সেই বস্তি মহল্লা যদি দেখো, যে কমন শৌচালয়, তার যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একদম দুরবস্থা। কি বস্তি কি মহল্লা, আমরা তো নিজেরা দেখেছি, ঘুরে এসেছি, তো কি পরিস্থিতিতে রয়েছে। আর এই শিল্প তো আসলে নষ্ট হয়ে যাবে যতই যাই বলুক না কেন, কারণ সিনথেটিক যে ব্যাগ তৈরি হচ্ছে, তো সুতরাং এই শিল্প তো মার যাবে। সরকারকে যদি এই ব্যাপারে উদ্যোগ না নেয়, সরকারি উদ্যোগ অবশ্যই দরকার, এবং চাপ সৃষ্টি করতে হবে এই মালিক পক্ষের ওপরে। না হলে এই যে একটা ঐতিহ্যবাহী যে শিল্প, এই যে পাট শিল্প, যার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দাঁড়িয়েছিল পাটের অর্থনীতির ওপরে, সেই শিল্পটাই নষ্ট হচ্ছে। কেউ, তুমি কি বলছো যে এইখানে যেমন রাষ্ট্র, যেমন সরকার, এমনকি রাজনৈতিক দলগুলো তার দায়িত্ব পালন করছে না? তুমি কি মনে করছো সরকার এবং এই ট্রেড ইউনিয়নরা আর এই শ্রমিকরা যদি একেবারে যৌথভাবে আলোচনা করে, তাহলে পরে কি করে এই সমস্যা থাকে? আরেকটা কথা তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, যে তৎপর শ্রমিক মানে মিল তো একটা, আর একটাই তো শব্দ শ্রমিক, তো এত ইউনিয়ন কেন? শ্রমিক ইউনিয়ন কেন? 32টা 20টা 25টা কেন শ্রমিক ইউনিয়ন? চটকল ফ্যাক্টরি একটা, মিল একটা, একটাই শব্দ, সবাই মজুর, সবাই শ্রমিক, অথচ শ্রমিক নেতা এত দলাদলি রয়েছে, রাজনীতি ঢুকে রয়েছে, রাজনীতি এর মধ্যে ঢুকে রয়েছে, একটা বামপন্থী রাজনীতি রয়েছে, ডানপন্থী রাজনীতি রয়েছে, অন্যান্য রাজনীতি রয়েছে। এই রাজনীতির শিকার তাহলে আপনি বলছেন? রাজনীতির শিকার কি? আরো তোমায় বলছি, খোলাখুলি তো তুমি ও বলছো না, এরাও বলছে না। অনেক ট্রেড ইউনিয়ন লিডার আছে। আরে ইউনিয়ন তো ট্রেড ইউনিয়ন, এরা তো ইউনিয়নটাকে ট্রেড করে ফেলেছে, নিজেরা ব্যবসা করে ফেলেছে। মালিকের সঙ্গে এদের অনেকের গোপন চুক্তি আছে, এরা মদত দেয়। এটা বললে তো হবে না। প্রশ্ন এরমও আছে, আমরা অনেক এরমও দেখেছি যে নেতৃত্ব কোনো মুখ খোলার চেষ্টা করলে এরকম শ্রমিকদের বার করে দিচ্ছে, মিল থেকে বার করে দিচ্ছে। এটা কি সম্ভব? এটা পড়ছে এরকম, আমরা বিভিন্ন মিলের গেটে যাবেন, সেখানে দেখবেন যারা মিল মালিকের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে তাদের মিল বাইরে। তার মানে তুমি বুঝতে পারছি যে ব্যবস্থাটা কোন দিকে গেছে। মানুষের পক্ষে নেই, শ্রমের পক্ষে নেই, শ্রমিকদের পক্ষে নেই। তো সুতরাং এখানে কি অবস্থা আছে, এটা তো সবাইকে বুঝতে হবে। এটা তো মিডিয়ারই কাজের দেয়। আচ্ছা, তুমি যে এতগুলো যে জুট মিল বন্ধ হয়েছে, আমি যে বললাম এই একটা থেকে নতুন হয়েছে, তুমি কোন বড় কাগজে দেখেছো এই খবর? বার করো আমাকে এই 10 দিনের মধ্যে মিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যে এই
জুট মিল বন্ধ, এই জগদ্দল বন্ধ হয়ে গেছে, এই নদিয়া বন্ধ হয়ে গেছে, তুমি দেখাও আমাকে, আমি তো একটা বাজি রাখছি। অবশ্যই এই সরকারকে কিন্তু সরকারের উদ্যোগের ক্রাইসিস, এটা স্বাভাবিক, এটা সরকার নিশ্চয়ই সেই জন্য নেতারা বলছেন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা যিনি বলছিলেন যে আমাদের ত্যায্য পুত্র করেছে, আমাদের কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না সরকার, জুট শ্রমিক মানে এটা কোনো প্রয়োজন নেই, ঘরের থেকে বের করে দিয়েছে। না তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিচ্ছে, না তাদের দিচ্ছে নজর দিচ্ছে, মানে তুমি বাঁচলে কি মরলে কি তাতে কিছু আসে যায় না। সরকার এই পদক্ষেপ নিচ্ছে। তাহলে ভোটের সময় কিন্তু অন্যরকম কথা হয়, তাহলে তখন মিলগুলো খুলে যায়, ওদের সবকিছু ব্যবস্থা হয়, ভোট গেলেই কিন্তু আবার কাজ মানে যেটা একটা আছে, কাজের সময় কাজই, আর কাজ পুরালে কাজই। কিন্তু কাজই হয়ে যায়। তো সেইটাও কিন্তু সরকার পদক্ষেপ এরকম একটা ভূমিকা দেখা যাচ্ছে। সেটা আপনার কি মনে হচ্ছে কি সেটা নয়? তা তো বটেই। যদি কল্যাণকর রাজ্য হয়, কল্যাণকর রাষ্ট্র হয়, তো কথাটাই তো মানুষের জন্য। মানুষই ভোট দিচ্ছে, মানুষই নির্বাচন করছে, তার ওপর দায়িত্ব দিচ্ছে যে তুমি আমাকে একটু ভালো করে দেখভাল করো, এই জন্য তোমায় ভোট দিচ্ছি। কিন্তু তারপরে তো মানুষকেই শোষণ করছে সরকার। এটা তুমি নিজেই তো বুঝতে পারছো। যা আমি পদ্ধতি চলছে। বোঝার জন্য বলছি কমলদা, যে সরকার বলছে রোজগার সৃষ্টি করতে হবে, রোজগার ইন্ডাস্ট্রি আনতে হবে, আর এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো যে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটা বাঁচানোর চেষ্টা করছে। অদ্ভুত রকম। এইটা কেমন ভাবে কি ইন্ডাস্ট্রি আনার চেষ্টা হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রি আসছে না, আর যে ইন্ডাস্ট্রি গুলোকে আছে রেডি সেগুলোকে তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ বাঁচানো, বাঁচানোর কোনো উদ্যোগ নেই কেন? এটা কি তাহলে এটা কিভাবে হচ্ছে? আর তুমি বলছো যে এই গাছটা পুরনো হয়ে যাচ্ছে, তার যে সার জল দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে, যেটা আমার হাতে আছে সেটাই করছি না, বাইরের পুঁজি তো বাইরের লোকের উপর নির্ভর করবে, সে আসবে কি না আসবে, আমি যতই তাকে অফার দিই না কেন, সে তার উপর নির্ভর করে, তুমি তার দিকে দেখছো। তারপরে জনগণকে এইভাবে, মানে কি বলবো, আর এই যে একটা শিল্প সম্মেলন নানা রকম কিছু হয়, কত কোটি কোটি টাকা খরচ হয় তুমি জানো? অথচ আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে একটা কোনো শিল্প হয়েছে তুমি বলো, নাম দিয়ে বলো যে এইটা হয়েছে, এইটা আমাদের মানে প্রশাসন উদ্বোধন করেছে, তুমি বলো। মানুষ এটা বুঝছে না। না, আমার প্রশ্ন তো এটাই যে এই যারা অলরেডি এক্সিস্টিং ইন্ডাস্ট্রি, হ্যাঁ, সেটাকে বাঁচানোর জন্য উদ্যোগ নেই তেমন ভাবে নেই নেই কেন? নেই নেই। কেন সেটা কেন? তার মানে নেই, মানে তার সদিচ্ছা নেই। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হলে তার সদিচ্ছাটা পেয়ে আমি দেখছি, এইটা ইচ্ছা নেই। আর তার সঙ্গে রাজনৈতিক নেতারা জড়িত আছে, তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ। ও হলদিয়া, ইয়ে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হলদিয়া ফ্যাক্টরি দেখেছো তো? অবশ্যই ব্যাটারি ব্যাটারি ফ্যাক্টরি, অবশ্যই তৃণমূল নেতৃত্বে, মানে ওইখানকার তৃণমূলের তিনজন না চারজনকে লিডারকে নাকি যারা নেতৃত্ব তাদের অ্যারেস্ট করেছে এবং জামিনও হয়ে গেছে সুপ্রিম কোর্টে। তো এই তো স্বাভাবিক ব্যাপার, এই পদ্ধতিতে এই সিস্টেমই চলছে। তো তারাই এইটা করছে, এই তার কাগজে আছে, তুমি দেখো। হ্যাঁ, অবশ্যই খুব চিন্তার ব্যাপার। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিকে আনতে চিন্তা হবে। করবে কে, কে এদের পেছনে আছে দাঁড়াবে, এই লোকই তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সরকার না বিপক্ষ। না, না বিপক্ষ কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে বাঁচবে কি করে মানুষ? তাহলে কি নিজে উদ্যোগ নিয়ে লড়াই আমি করতে থেকেই হবে? তো লড়াই করে পাচ্ছে নিজে এখন কোনো মতে, সব মেনে নিচ্ছে, মাথা নিচু করে সব মেনে নিচ্ছে, যারাই লড়াইকে সংগঠিত করছে তারাই তো আবার জিতিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে। এই তো অদ্ভুত তাহলে লড়াইটা হবে কি করে? কি করে হবে? একটা কোথায় বুঝছে না, মাঝখান নয়, একটা অদ্ভুত সংকটজনক পরিস্থিতি চলছে। কে মানুষকে পাশে আছে, মানুষই বুঝতে পারছে না। অবশ্যই খুব বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে যাচ্ছেন জুট শ্রমিকরা। ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের জুট ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু খুব বিখ্যাত ইন্ডাস্ট্রি, লাখ লাখ শ্রমিক এখানে ইনভলভ ছিলেন আছেন, কিন্তু এদের রক্ষণাবেক্ষণ, এদেরকে বাঁচানোর জন্য সরকারেও কোনো তেমন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অন্য অন্য ব্যবসা আনার জন্য, বাণিজ্য আনার জন্য কিন্তু একটা অনেক বড় করে ঢালাও করে উৎসব হচ্ছে, মেলা হচ্ছে, বা ব্যবসার মেলা, আর এই ধরনের সামিট আয়োজন করা হচ্ছে, কিন্তু এই যে এক্সিস্টিং ইন্ডাস্ট্রি তার রক্ষণাবেক্ষণ, তাকে বাঁচিয়ে রাখা, শ্রমিকদের জীবন জীবিকাকে বাঁচিয়ে রাখা, সেই দিকে কোনো তেমনভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। খুব নিন্দাজনক, খুব দুঃসময় রয়েছে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে, পাট শ্রমিকদের ক্ষেত্রে, জুট শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটা খুব দুঃসময় যাচ্ছে। আর শ্রমিক নেতারা যেটা সঞ্জয়জি বলছিলেন যে একসময় এমন হয় যখন লড়াই করতে করতে, মার খেতে 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 যখন মানুষ একেবারে শেষ হয়ে যায়, তখন আর পেছনে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা নেই, পেছনের রাস্তা নেই, তখন মানুষ কিন্তু আক্রমণ করে। একসময় আসবে, আবার গোল্ডেন পিরিয়ড ফিরবে, শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হবেন, মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামবেন, সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামবেন, আর তারা জয়যুক্ত হবেন একসময়, আসবেই। তাই জন্যে এই গানটা মনে হয় আছে, যে আমরা দুটো লাইন এই গান দিয়ে সেই
যে আমরা করব জয়, যেটা রয়েছে আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. অবশ্যই একদিন না একদিন ওভারকাম করবে শ্রমিকরা, জুট শ্রমিকরা বাঁচবে, লড়াইতে এগিয়ে আসবে, আর তারা ওভারকাম করে আবার সেই জুট ইন্ডাস্ট্রি গোল্ডেন পিরিয়ড ফিরবে, এই আশা নিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানটা আমরা শেষ করছি। আপনারা দেখছেন আজ তাক খবর, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। নমস্কার।